Good evening guys, this is Dr. Preeti Bajpayee and welcome you all to my channel Physics Mantra। तो लास्ट मेरा जो वीडियो था वेक्टर्स में, उसमें मैंने आप सभी को बताया था कि हाउ टू प्रेजेंट अ वेक्टर, हाउ टू प्रेजेंट अ वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, मतलब एक वेक्टर को मैंने, just suppose this is a vector, so we can write it in the form of like a equal to ax I plus ay j plus a z k, right, where this ax is component of vector a in direction of x, right। then ay क्या है आपका, ay is component of a in direction, which direction, y। and finally what is az equal to component of a in direction of which, z, right। so these are three directions x, y and z, and when we can write a particular vector in form of Cartesian, means in form of I, j, k, where I, j, k are unit vectors, right। and ax, ay, az, what are ax, ay, z, az? so ax is the component of a in direction of x, ay is the direction of a in direction of a in y direction, okay, component of a in y direction, and az is component of a in direction of z। so this was the thing in last video. Now in this video I'm just going to tell you that how to add two different vectors, like suppose these are two vectors a and b, okay, so we will go for addition of these vectors when these vectors are in Cartesian form, because now we are in 3D, okay। so let's go. See, if this is x direction, this is y direction, every time this is a direction, y direction, this is y direction, this is x direction, oh my god, this is y direction, this is your x-axis, x direction, right, this is y, this is x. Now we have two different vectors, suppose these vectors are a and b, so the location of vector a from this x direction is like this, I mean this is vector a, okay, and we have another vector b, say this, so this is vector b, okay। तो अभी करना क्या है, करना ये है कि we have one question that we have to find out a plus b, we have to find out value of a plus b। तो देखो यार, दो वेक्टर हैं a और b, ठीक है, और कार्टेशियन की अपन बात कर रहे हैं, तो अभी होगा क्या, मैंने आपको
अपने पीछे वाले वीडियो में जो लास्ट टू लास्ट शायद वीडियो था, उसमें मैंने आपको कुछ बताया था कि कॉम्पोनेंट, हाउ टू फाइंड components of a vector in two direction. ठीक है, तो जो कंपोनेंट ए का एक्स डायरेक्शन में था उसका नाम मैंने जो था वो लिख दिया था ए एक्स, ठीक है। और जो y डायरेक्शन में था उसको अपन बोल रहे थे ए वाई, ठीक है। और मैंने रिजल्टेंट वेक्टर जो बताया था वो आपका हो गया था वेक्टर ऑफ ए एक्स प्लस वेक्टर ऑफ ए वाई, ये था ना। सो इट वॉज द इक्वेशन when we'll find resultant vector of a vector which is in Cartesian form. Means total final vector, we can say that resultant vector equal to vector form of its component in x direction plus vector form of this a vector in component in y direction. Fine. Means this is equal to, final resultant vector is equal to vector form of its component in x direction plus vector form of its component in y direction which is a y, ठीक है। अच्छा, अभी देखो, अब ये आ गया आपका डायग्राम। आप मेरे को बताओ इधर किधर है ए एक्स, किधर है ए वाई, और किधर है आपका रिजल्टेंट, किधर आएगा। देखो, ये थी एक्स डायरेक्शन, यहाँ से एक वेक्टर था आपका ये ए, इससे ज्वाइंट हुआ दूसरा वेक्टर था बी। वेक्टर एडिशन के टाइम पे मैंने बताया था कि कैसे ऐड करते हैं, हेड टू टेल बताया था। देख लो यहाँ पे, पहले वाले का हेड है, दूसरे वाले का टेल, बिकॉज वी आर गोइंग टू फाइंड आउट ए प्लस बी। ए में बी को ऐड करना है, तो ए पहला हो गया, बी हो गया दूसरा। सो ये हो गया आपका ए और इसमें आपका ऐड हो गया बी। अभी देखो, ये जो ए है ये कहीं यहाँ तक आ रहा है एक्स पे, और ये कहीं यहाँ तक आ रहा है। इसको थोड़ा और अब बढ़ा लो, आप ऐसे कर लो, ये कहीं यहाँ तक आ रहा है। मतलब ये वाला जो पोर्शन, ये वाला जो था, ये आपका बन जाएगा ए एक्स, और ये आपका इतना यहाँ से पूरा शुरू से लेकर यहाँ, मतलब सॉरी यहाँ से यहाँ तक पूरा ये बन जाएगा आपका ए वाई। ए, अरे यार, ये बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका बी एक्स, क्योंकि दो वेक्टर हैं ए एक्स, ए और बी। तो एक्स एक्सिस पे जब इनका वेक्टर, इनका कंपोनेंट लोगे, है ना, सो वो ए एक्स आएगा और बी एक्स आएगा, वाई नहीं आएगा, सिर्फ एक्स की फॉर्मेट में आएगा। अगर ए वाई और बी वाई की अब बात करें किधर है, तो देखो अब आ जाओ वाई एक्सिस पे, और ये जो वेक्टर्स थे इनको यहाँ से मिला दो, ये मिला दिया, तो जो ये आया ये आपका बन गया ए वाई, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा सा आगे है, इसको मिला दो, ये लेके आए, इसको अब यहाँ से मिला दोगे तो पूरा यहाँ से यहाँ तक ये जो आपका बनेगा ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा बी वाई। आई बात समझ में? अच्छा, अब रिजल्टेंट की बात करते हैं। तो देखो, दो वेक्टर थे ए और बी, मुझे दोनों को ऐड करना था, दोनों को ऐड करना था। मैंने पहले भी बड़ी बार बताया हुआ है कई सारी बार कि जो दो वेक्टरों का जो एडिशन होता है, दो वेक्टर्स का ऐड करते हैं जब, तो उनके एडिशन को ही बोलते हैं रिजल्टेंट, ठीक। तो देखो, रिजल्टेंट के लिए क्या था, ये तो एडिशन के लिए था, हेड टू टेल, मतलब ये तो जब सेट आपने किया था एडिशन पे, जब आप एडिशन के लिए जाते हो तो उसका जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज हेड टू टेल। फिर आप जब फाइनल रिजल्टेंट निकालते हो तो उसके लिए आपको जाना पड़ता है टेल टू हेड, ठीक। पहले वाले की जो है आपका टेल, वहाँ से आप चलोगे और आप पहुँचोगे लास्ट वाला जो होगा, एकदम फाइनल वाला आपका जो वेक्टर होगा उसका हेड तक। सो दैट इज़ योर रिजल्टेंट। सो रिजल्टेंट वेक्टर के लिए आप क्या करोगे,
आपने आपने ये उठाया यहाँ से और आप सीधा चले गए ये जोड़ दिया, तो भैया ये जो आपका आ गया ये आपका हो गया r, और ये r इक्वल टू यहाँ पे है a प्लस b। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ये बात तो समझ में आई। अब a प्लस बी तो किया, लेकिन इसके आगे क्या, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म में है तो मुझे सब कुछ देखना है, x में कितना चला, y में कितना चला, ये सब देखना पड़ेगा। तो r इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं, a को, ये देखो ये मैंने बताया था, ये इक्वेशन यूज़ कर लो, a को लिख सकते हैं ax प्लस ay प्लस b को लिख सकते हैं bx प्लस by। ठीक है, अब आ जाओ, ये तो वेक्टर के फॉर्म में हुई। अब क्या करेंगे, x कंपोनेंट को एक साथ ले लो, तो ax प्लस bx प्लस ay प्लस by हो गया। ठीक है, अब ये बताओ कि ax को लिखते क्या थे, ax वेक्टर होता था उस समय, पीछे जो वीडियो में आपने लास्ट वीडियोस में पढ़ा हुआ है, ax जो होता था वो हो जाता था a cos थीटा। और चलो एक काम करती हूँ, छोटे स्केल से बताती हूँ, ax जो कंपोनेंट होता था किसका, वेक्टर a का, कौन सी डायरेक्शन में, x में, वो क्या होता था ax, और ax इक्वल टू होता था a cos थीटा। इसी को वेक्टर फॉर्म में जब लिख देते थे तो यही हो जाता था कि वेक्टर ऑफ ax इक्वल टू, वेक्टर बनाने के लिए क्या चाहिए, तो स्केलर क्वांटिटी थी, वेक्टर बनाने के लिए क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन, तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, तो आपने मैग्नीट्यूड को एज इट इज लिख दिया a cos थीटा। डायरेक्शन क्या है, बिकॉज x की बात हो रही है तो डायरेक्शन में यानी कि उसका यूनिट वेक्टर लग जाएगा, और x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है i। ठीक, a cos थीटा i हो जाएगा। इसी तरीके से ay को क्या लिखा था, ay को लिखा था मैंने a sin थीटा, ये होता था। तो जब ay a sin थीटा होता था तो इसका वेक्टर क्या बन जाएगा, इसका वेक्टर भी बन जाएगा a sin थीटा j। क्यों j क्यों लिखा, क्योंकि y डायरेक्शन में कंपोनेंट ले रहे हो आप। ठीक है, तो उस कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड हुआ, जो कंपोनेंट मैं बोलती हूँ, तो मैग्नीट्यूड एज इट इज हो गया, मैग्नीट्यूड ये हो गया और प्लस मतलब इनटू में उसका डायरेक्शन लिख दिया j, तो ये आपका बन गया a y वेक्टर। अच्छा, जैसे a के लिए ax और ay लिखा, वैसे b के लिए bx by हो जाएगा। जैसे आपका ax इक्वल टू a cos थीटा i था, वैसे by का वेक्टर भी हो जाएगा b sin थीटा j। a के लिए a cos थीटा i, b के लिए b cos थीटा i, ay के लिए a sin थीटा j, by के लिए b sin थीटा j। इतना हो गया। इसके बाद क्या होगा, यहाँ तक तो आए। अब आपको वैल्यू पुट करनी है, मतलब जो आप r निकाल रहे हो ना, आप अगर r इक्वल टू निकालो ax प्लस bx की जगह उनकी वैल्यू जो भी थी वो पुट करते हो आप, तो ax की जगह आप रख दोगे a cos थीटा i प्लस bx b cos थीटा i प्लस इसमें लिख दो, इसमें रख दो आप, इसमें क्या हो जाएगा a sin थीटा j प्लस b sin थीटा j। i एक तरफ कर लो, तो ये आपका हो गया a cos थीटा प्लस b cos थीटा i प्लस a sin थीटा प्लस b sin थीटा का j हो गया। यानी कि यहाँ से जो पता चल रहा है, अगर आप देखो ये वेक्टर फॉर्म मैंने लिखी है, ये जो लिखी है ये वेक्टर फॉर्म लिखी है, तो इसी को आप ये लिख सकते हो कि जब r वेक्टर इक्वल टू ये आ रहा है
तो इसका मतलब फिर ये जो है आपका होना चाहिए क्या, ये पोर्शन होना चाहिए आपका आर एक्स और ये वाला पोर्शन होना चाहिए आर वाई। तभी ना आप लिखोगे क्या कि आर इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई। ये आई भी इंक्लूडेड है इसमें आई इंक्लूडेड है, इसमें जे है ना, क्योंकि डायरेक्शन बतानी पड़ेगी तभी तो वेक्टर बनेंगे। और क्योंकि अगर मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करनी थी तो मैं आर एक्स लिखती, तो यहाँ पे आर एक्स इक्वल टू है आपका ए कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा, और आर वाई इक्वल टू है आपका ए साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा। ठीक है, ये है। अच्छा, ये तो आ गया। तो अब ये चीज़ क्या बता रही, जैसे आपके एक आप इंडिविजुअल वेक्टर की बात करते हो, ए या बी या किसी भी वेक्टर की बात करते हो, वैसे यहाँ आर भी तो अपने आप में एक वेक्टर है ना, रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर का भी देखो क्या दिखा रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर भी बोल रहा है कि भैया मैं भी वेक्टर हूँ, तो मैं भी वेक्टर की फॉर्म में लिखा जा सकता हूँ। हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है, इसीलिए लिखा है आर इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई। जैसे ए इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई होता था, वैसे आर इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई हो गया, जहाँ पे आर एक्स की वैल्यू ये हो गई। इसका मतलब हुआ कि कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर आर विच इज़ अ रिजल्टेंट वेक्टर, component of a resultant vector r is a cos theta plus b cos theta in which direction x, and a sin theta plus b sin theta, that is the component of vector r which is resultant vector, this is in y direction। तो ये आपका हो गया i इसमें लग जाएगा, जो i कैप हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x डायरेक्शन में, और जो आर वाई लिखा है ये आपका y डायरेक्शन में है, तो इसका जो डायरेक्शन बताएगा यूनिट वेक्टर वो हो जाएगा j। तो ये आपका आ गया रिजल्टेंट। ठीक है, ये आपका आ गया यहाँ तक रिजल्टेंट। अब अगर आपको निकालना हो क्या मैग्नीट्यूड, अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कैसे करने वाले हो, अगेन मैंने बताया था जो वही हो जाएगा कि आप अंडर रूट निकाल लोगे। जैसे अगर इसका निकालो आर का, तो आप कर दोगे आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ठीक है, रूट लगा दिया है तो आप ये आराम से हटा सकते हो। आर इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, सो कुल मिला के ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बताया कि ये जो आर एक्स है आपका, ये आ जाना चाहिए आपका ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी एक्स, और आपका आर वाई हो जाना चाहिए ए वाई प्लस बी वाई। ठीक है, तो जैसे यहाँ देखो मैच करा दो, ये क्वेश्चंस को यहाँ से मैच करा दो आप इससे। ये मैंने आर एक्स बताया था ऊपर से निकाल के, देखो आर एक्स इक्वल टू लिखा है ए कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा। तो यार ए कॉस थीटा क्या था, ए कॉस थीटा क्या था, ए कॉस थीटा मैंने बताया था ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, अभी ऊपर बताया ना। ये देखो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, और इसी तरह से बी एक्स इक्वल टू बी कॉस थीटा हो जाएगा, और बी वाई इक्वल टू बी साइन थीटा। तो मतलब कि इसको इससे मैच करा दो तो ये हो गया ना तुम्हारा, मतलब इस फॉर्म को जो आर एक्स को मैंने ये लिखा हुआ है, इस फॉर्म को तुम कन्वर्ट कर रहे हो इस फॉर्म में। ठीक है, कनेक्ट कर पा रहे हो गया। सो कुल मिला के एक ही बात याद रखनी है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो अपना था कॉन्सेप्ट, उसका वेक्टर जो आपने कंपोनेंट बनाए थे वो क्लियर होना चाहिए। फिर उसको उलटते पलटते रहो, कैसे भी कहीं भी सेट करो, ले दे के जो इक्वेशंस आएंगी आपकी वो आएंगी बराबरी, मतलब तोड़ मरोड़ के कैसे भी आपको सेट करो, कैसे भी आप उसको लगाओ, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट जो आना है वो सेम ही रहेगा। तो कुछ 3-4 इक्वेशन है जो पूरे कंपोनेंट या एडिशन के थ्रू आपको मिला हुआ है, उसमें वो आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैंने एक वेक्टर अभी बताया, जैसे एक ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है कि एक वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट आप डायरेक्ट याद रखो कि एक्स निकालते हैं तो वही कॉस थीटा हो जाता है। देखो ये जो ए एक्स ए वाई था, ये इंडिविजुअल एक सिंगल वेक्टर की बात हो रही थी, ये एक इंडिविजुअल वेक्टर की बात हो रही थी, यानी कि
मैं बोलूँ कि एक सिंगल वेक्टर की बात कर रही थी मैं, ठीक है। लेकिन जब बात करती हूँ मैं आर की, तो ये सिंगल वेक्टर नहीं है, ये है रिजल्टेंट वेक्टर। कौन सा वेक्टर है? रिजल्टेंट। ये है रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स। फिलहाल दो वेक्टर की बात कर रहे हैं तो मैंने टू वेक्टर्स लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो इसके लिए जब एक सिंगल वेक्टर का एक्स कंपोनेंट निकालते हैं तो वो क्या होगा? ए कॉस थीटा हो गया, ठीक है। लेकिन जब रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट तो अकेले का नहीं है ना, रिजल्टेंट तो दो का आ रहा है। तो यानी कि रिजल्टेंट दो का आ रहा है, तो रिजल्टेंट का भी जब एक्स कंपोनेंट की बात करेंगे तो वो भी कैसा हो जाएगा? पहले वाले वेक्टर, मतलब चलो कोई भी दो में से कोई भी एक वेक्टर का कंपोनेंट प्लस दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट, और कौन सी डायरेक्शन में कंपोनेंट होना चाहिए? एक्स में। यानी कि जब एक्स कंपोनेंट रिजल्टेंट का निकालेंगे तो वो हो जाएगा इक्वल टू एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर और प्लस एक्स कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर। इसी ये जो मैंने अभी लाइन बोली वो ये दिखा रही है, ये है आर एक्स इक्वल टू, यानी कि एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट इक्वल टू एक्स कंपोनेंट ऑफ ए प्लस एक्स कंपोनेंट ऑफ बी। दोनों वेक्टर्स का जिनका रिजल्टेंट निकाल रहे हैं उन दोनों वेक्टर के एक्स कंपोनेंट को निकाल के जोड़ दो तो वही बन जाएगा आपका टोटल एक्स कंपोनेंट ऑफ किसका? रिजल्टेंट का। तो आई थिंक एक ही बात को कई बार मैंने घुमा घुमा के बता दिया है, बाकी आप इसमें देख लो। सो ये आपका हो गया जो मुझे अभी बताना था कि कैसे निकालें आप कंपोनेंट को, कैसे आप लगा के, कैसे आप कार्टेशियन फॉर्म में अगर दो वेक्टर सेटअप है उनका तो उनका मैग्नीट्यूड और उनको ऐड कैसे करते हैं। तो अब इसको और क्लियर करने के लिए थोड़ा क्या करते हैं, कुछ एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। सो देखो, मान लो एक आपको वेक्टर दिया गया है ए, एक आपको ए वेक्टर दिया गया है और वो है 3i माइनस 5j प्लस 7k। चलो ये दिया गया, ठीक है। और एक वेक्टर आपको दिया गया है बी इक्वल टू आपको दे दिया गया है 2i प्लस 4j माइनस 3k। ये दो वेक्टर आपको दिए गए। आपको क्वेश्चन बोला गया है डिटरमाइन द वेक्टर विच व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। एक क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आर आपका रिजल्टेंट है ऑफ ए प्लस बी, इफ आर इज एन रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो आर हो गया। तो ये मान लो ये कंडीशन है। तो वो बोल रहा है कि आप फाइंड आउट करो, फाइंड आउट द वेक्टर which when added to the resultant vector of A and B gives unit vector किधर की ओर? along y डायरेक्शन। मान लो ऐसा कुछ है, ये है आपका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसने आपको दो वेक्टर दे दिए ए और बी। उसने कहा कि मेरे को कोई तीसरा वेक्टर ऐसा है जो फाइंड आउट करके बताओ, और वह वेक्टर क्या है, वो वेक्टर की कंडीशन क्या है। कंडीशन उसकी ये है कि वो वेक्टर अगर ऐड किया जाए आर के साथ, और आर क्या है?
आर है रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दीज टू वेक्टर ए एंड बी। वो बोल रहा है कि मेरे को एक वेक्टर मान लो सी है, वो फाइंड आउट करो जिसको अगर ऐड करते हैं आर के साथ तो मुझे मिलता है यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन वाई, अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, ये बोल रहा है। अब बताओ जरा ये क्या कहना चाह रहा है। ये क्वेश्चन में जो बोलना चाह रहा है वो ये है कि भाई अगर मैं मान लूँ कि वो तीसरा वेक्टर जो मेरे को फाइंड आउट करना है दैट इज सी, तो कंडीशन के हिसाब से जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कंडीशन ये है कि अगर सी को ऐड किया किसके साथ, आर के साथ, ठीक है, तो अगर सी को आर के साथ ऐड किया, सी प्लस आर अगर किया, तो इसका जो रिजल्टेंट मिलेगा वो होना चाहिए यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन। ये जो लिख दिया गया है ये आप बताओ ये क्या लिखा हुआ है, मतलब समझ में आ रहा है इसका? इसका मतलब तो भैया ये है कि अभी तक मैंने जो बताती आई हूँ मैं कि एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है आई, वाई डायरेक्शन में क्या होता है जे, जेड डायरेक्शन में क्या होता है के। तो ये देखो वाई डायरेक्शन में क्या होता है जे। ये बोल रहा है अगर वेक्टर सी आर के साथ ऐड कर दिया जाए तो इसका जो रिजल्ट अपन को मिलेगा वो होगा यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन। यानी कि ये बोल रहा है सी प्लस आर अगर करते हैं अपन, है ना, तो जो आंसर मिलना चाहिए वो होना चाहिए जे। आई बात समझ में? तो पहले तो यही मेन मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका यही होता है जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो कि एग्जैक्टली पूछ दो ही चीज़ें पहले ज़रूरत होती हैं, क्या दिया गया है वो आप निकाल पाओ, इतना समझ पाओ क्वेश्चन को कि जो दिया है जो गिवन है उसको आप नोट कर पाओ, एंड सेकेंड थिंग इज फाइंड आउट क्या करना है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर यही नहीं पता होगा कि निकालना क्या है तो फिर जो गिवन है वो पता चल भी गया तो क्या कर लोगे, तो वो जानना ज़रूरी है कि क्या फाइंड आउट करना है। सो फाइंड आउट ये करना है फिलहाल। चलो तो ये कंडीशन है, ये बोल रहे हैं कि ऐसा है, ठीक है, और आर आपको ये गिवन है कि आर जो है वो आपका रिजल्टेंट है ए प्लस बी का, ए प्लस बी का। तो आओ जरा देख लें ए प्लस बी है क्या। तो ए दिया गया है, बी दिया गया है। देखो दोनों जो वेक्टर हैं कार्टेशियन फॉर्म में दिए गए हैं, दोनों का यहाँ पे ऐड करो। तो अभी ए प्लस बी जब करोगे क्या आएगा, आई को आई के साथ ऐड कर दो तो 3 + 2 5 हो गया, 5 5। सेकेंड जो जे वाले कंपोनेंट यानी जो वाई कंपोनेंट उनको आपस में ऐड करोगे, क्योंकि मैंने पीछे पढ़ा था कि ए = हो जाता है ए एक्स प्लस बी एक्स, सॉरी ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई नहीं भाई, ए एक्स प्लस ए वाई क्या करता है, ए एक्स प्लस ए वाई, और बी = हो जाएगा आपका बी एक्स प्लस बी वाई, ये हो जाएगा। तो इसी हिसाब से एक्स कंपोनेंट दोनों के जो थे, क्योंकि ए प्लस ए नहीं कर रहा है हम, तो ए प्लस बी कर रहा है ना, यानी कि एक्स कंपोनेंट ऑफ ए प्लस एक्स कंपोनेंट ऑफ बी, फिर उसके बाद वाई कंपोनेंट ऑफ ए प्लस वाई कंपोनेंट ऑफ बी। क्योंकि अभी ऊपर इसके ऊपर मैंने जो आपको आर के बारे में बताया था उसमें मैंने कहा था कि जो आर का एक्स कंपोनेंट हो जाएगा आर एक्स, वो क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स। तो यहाँ रिजल्टेंट की ही बात कर रहे हैं, तो ए एक्स प्लस बी एक्स पहले में आ जाएगा। ए एक्स क्या है 3, बी एक्स क्या है 2, ए वाई क्या है -5, बी वाई क्या है 4, ए जेड क्या है 7 और बी जेड क्या है -3। तो वैसे आप ए एक्स बी एक्स जोड़ लो, ए वाई बी वाई जोड़ लो, ए जेड बी जेड जोड़ लो और उनका डायरेक्शन साथ में लगाते जाओ। तो ये हो गया 3 2 5 -5 4, ये माइनस आ गया, माइनस का आ गया आपका जे, क्योंकि 1 है तो 1 आप लिखोगे नहीं, और ये आ गया +4 का के। समझ में आई इतनी बात? ये आ गया आपका आर।
आर की वैल्यू आ गई 5 माइनस जे प्लस 4k। ठीक है, ये आ गया। अब वो बोला था मुझे को सी निकालो आप, जिसको आप आर के साथ ऐड करते हो तो जे मिलता है। ठीक है, सी तो पता नहीं तो सी को सी रखेंगे, सी को सी रख लिया, आर के साथ ऐड कर दो। इधर लिख लो आप 5 माइनस जे प्लस 4k इक्वल टू कितना बोल रहा था जे, ये कंडीशन दी गई थी आपने, उसमें जो है आर की वैल्यू पुट कर ली, बस उतना किया। तो सी इक्वल टू यहाँ से निकाल लो, सी इक्वल टू हो जाएगा जे माइनस 5 प्लस जे माइनस का 4k। तो ये आ गया आपका 2j यानी कि माइनस का 5 प्लस का 2j माइनस का 4k। सो कुल मिला के जो वेक्टर आपका फाइनल आ गया वो आ गया माइनस का 5 प्लस का 2j माइनस का 4k। अब देख लो आंसर चेक कर लो सही है कि नहीं। ये तो मैंने यहाँ से निकाला, अब इसको चेक कैसे करेंगे। देखो वेक्टर आपको जो गिवन था वो ये दोनों थे, आपने उसका एडिशन निकाल लिया, रिजल्टेंट निकाल लिया, यहाँ तक आपको काम करना था। ये जब एक बार आपने किया, ये जब आपने एक बार किया, a प्लस बी आपने जब निकाल लिया यानी कि r निकाल लिया, वो बोला था r में वो वेक्टर आपको तीसरा ऐड करना है जो आपको रिजल्ट दे क्या, j। तो देखो भैया जो ये r आपको दिया गया आप ओरली कर लो, इतना सोल्यूशन मतलब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या कर लो, सिर्फ j बचाना है ना, इस r में ऐसा क्या ऐड किया जाए कि सिर्फ j बचे। तो देखो सिर्फ j बचना है पहले, तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस में जे दिया गया, तो अगर 2j में से एक j माइनस कर दिया जाए तो एक j बचेगा आपका, एक ही j आपको लाना है। यानी कि इस वेक्टर में कुछ ऐसा जोड़ो कि सिर्फ j बचे। तो देख लो इसको आपको कैंसिल करना है, यानी कि 5i का कोई काम ही नहीं है, तो माइनस 5i जोड़ दो इसमें, तो कैंसिल हो जाएगा। फिर माइनस जे को हटा के प्लस j लाना है, कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा कि उसमें प्लस 2j ऐड कर दो, प्लस का 2j ऐड कर दो तो एक सिंगल j बच जाएगा। फिर 4k है, हमें तो 4k चाहिए ही नहीं, यानी कि पूरी तरह से हमें 4k को रिमूव करना है, तो प्लस 4k में माइनस 4k ऐड कर दो, ये भी 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के आपका जो c होना चाहिए वो ये आ जाएगा। तो ये आप ओरली भी कर सकते हो, लेकिन ठीक है एक तरीका मतलब देख तो लेना चाहिए कैसे सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, सो ये हो गया इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं, आई होप समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा हो तो मेरा जो वीडियो है आप लाइक करो, शेयर करो और भैया सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, सो दैट मैं जो जो नया नया आपको वीडियोस जो उसमें डालूंगी वो आपको बराबर मिलते रहें। ठीक, अच्छा नेक्स्ट एक चीज़ और देखते हैं, क्या कि मान लो ये आपका है, ये इधर बनाती हूँ, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, यार ये हो गया आपका ये वाई एक्सिस बनाने में जो है वाई एक्सिस बन जाओ यार, वाई एक्सिस बन जाओ 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 बन जाओ। चलो ठीक है, बन गई बहुत बढ़िया बन गई। ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स। आपको बोल रहा है कि एक वेक्टर है जिसका एक वेक्टर है, सपोज दिस इज वेक्टर ए, और उसका जो आपको लेंथ दे दी गई है दैट इज 7 सेंटीमीटर, और एक बी भी दिया गया है, उसकी भी लेंथ आपको दे दी गई है 2 सेंटीमीटर, राइट। अभी ये तो बात हो गई मैग्नीट्यूड की। अब डायरेक्शन का क्या, डायरेक्शन ऐसे है, डायरेक्शन गिवन है कि जो वेक्टर ए है दैट इज ऑन 60 डिग्री फ्रॉम एक्स डायरेक्शन, 60 डिग्री ऑन अबव डायरेक्शन फ्रॉम एक्स। तो आप चले गए ऐसे कुछ, सपोज दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री। नाउ सेकेंड वेक्टर इज बी
और बी का भी लोकेशन आपको कुछ ऐसे ही दिया गया है कि वो एक्स डायरेक्शन से 60 डिग्री है लेकिन बिलो एक्स डायरेक्शन है। क्योंकि ये जो ए दे दिया गया था, ये आपको दिया गया था कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए मैंने यहाँ पे बनाया। और जो सेकंड आपको दिया गया है दैट इज ऑल्सो ऑन 60 डिग्री, दैट इज ऑल्सो ऑन 60 डिग्री फ्रॉम एक्स, बट it is in fourth quadrant, it is in fourth quadrant। ठीक है, अब ये आपको कंडीशन दी गई थी। ठीक है, तो ये हो रहा था कि मुझे इस कंडीशन में आप फाइनल रिजल्टेंट का वेक्टर बताओ कि क्या आना चाहिए, कैसे आप मतलब मेरे को रिजल्टेंट का वेक्टर बताओ क्या होगा। तो देखो, पहली बात तो ये r इक्वल टू क्या होना चाहिए, आर एक्स प्लस आर वाई। ठीक है, और आर एक्स क्या रहेगा, आर एक्स रहेगा x कॉम्पोनेंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर प्लस x कॉम्पोनेंट ऑफ वाई बी सेकेंड वेक्टर, और आर वाई आपका क्या रहेगा कि आपका y कॉम्पोनेंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर प्लस y कॉम्पोनेंट ऑफ सेकेंड वेक्टर। ये हो जाएगा आर एक्स और आर वाई, पीछे बताइए मैं। तो अभी कैसे करेंगे, पहले तो ये जब x और y की कॉम्पोनेंट्स की बात होती है तो यानी कि यार सबसे पहले तो आपको जो स्टेप कदम उठाना वो क्या होगा, फाइंड आउट components of vector A and vector B in x and y डायरेक्शन। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, अगर बात करते हैं एक, ये हो गया आपका A और यार ये हो गया आपका B। ठीक, अच्छा ये हो गई प्लस वाई डायरेक्शन और ये हो गई आपकी माइनस वाई डायरेक्शन। ये हो गई प्लस एक्स और ये हो गई माइनस एक्स। माइनस एक्स में कुछ काम ही नहीं है तो उसको छोड़ ही दो आप। अभी ए की बात करिए, जब आप वेक्टर ए की बात करते हैं तो ए एक्स क्या आएगा, क्या आता था, ए कॉस थीटा होता था ए एक्स। ठीक, ए कॉस थीटा, पीछे पढ़ के आप, ए कॉस थीटा होता था जिसमें कि थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन दैट वेक्टर, दिस टू वेक्टर। कौन से वेक्टर, एक ए वेक्टर और एक जो एक्स डायरेक्शन, मतलब एक्स डायरेक्शन से ए जो है वो कितना उठा हुआ है, दैट इज थीटा एक्चुअली। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 2। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 60 हो जाएगा। क्या वैल्यू आई, 2। कॉस 60 इज 1/2, फाइनल इज 1। सो ए एक्स की वैल्यू आई 1। ए वाई क्या हो जाएगा, ए वाई क्या हो जाएगा, ए वाई हो जाएगा ए साइन थीटा, यानी कि 2 साइन 60। साइन 60 इज √3/2, 2 इंटू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया, √3। In the same way, you would have find out bx and by. So, अभी आप ध्यान देते रहना कि डिफरेंस किधर पे आएगा। bx जो है ये था b, इसका चलो a से बात करते हैं। a का जो ax आएगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, अच्छा, और ay हो जाएगा इस डायरेक्शन में। अब अगर b की बात करते हैं तो b का bx किधर होगा, b का bx भी तो इधर ही होगा भैया, b का bx भी तो इधर ही होगा, यानी कि ax और bx दोनों एक ही लाइन पे हैं। ठीक है, यानी कि दोनों जब जरूरत पड़ेगी फाइनल निकालने की, जब x कंपोनेंट रिजल्टेंट के निकालने होंगे, जहाँ पर ax bx होगा, दोनों जुड़ जाएंगे वहाँ पे। अच्छा, सेकंड बात करते हैं y डायरेक्शन की। अब देखो a वेक्टर जो था उसका y कंपोनेंट जो था वो तो था आपका किधर, प्लस y डायरेक्शन में, लेकिन बिकॉज जो b वेक्टर था वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में था और वो आपका नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाता,
तो नेगेटिव में मतलब इसका जो कंपोनेंट है एक्स तो उधर ही बन गया, पॉजिटिव वाले के साथ ही में आ गया, क्योंकि कंपोनेंट मैंने किए जब इस वेक्टर के बी के, तो बी एक्स बी वाई करूँगी तो बी एक्स तो ए एक्स के ऊपर ही आ गया, वो तो ठीक है, प्लस डायरेक्शन में था। लेकिन वाई डायरेक्शन देखो इसकी, क्योंकि ये जो वेक्टर है ये आ जाएगा आपका क्या, बी वाई। तो बी वाई की डायरेक्शन कैसी है, नेगेटिव। बी वाई की डायरेक्शन कैसी है, नेगेटिव। तो आज जहाँ उसकी वैल्यू अब रखनी पड़ेगी वो हमको कैसी रखनी पड़ेगी, माइनस। क्यों रखनी पड़ेगी, क्योंकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड तो रखते ही हैं, उसके साथ उसकी डायरेक्शन भी रखते हैं, और डायरेक्शन में तो उसका जो साइन है वो तो इम्पॉर्टेंट है रखना। तो बी एक्स इक्वल टू सेम वैल्यू हो जाएगी जो आपकी वैल्यू थी ए कॉस थीटा की, यानी कि 1। ठीक है, क्योंकि आप जैसे ए कॉस थीटा रखा था वैसे आप बी कॉस थीटा रख दोगे, और बी कॉस 60 की वैल्यू भी वही आ जाएगी जो ए कॉस 60 की वैल्यू आई है, दैट इज़ 1। तो बी एक्स 1 आ गया। बी वाई क्या होगा, बी वाई का क्या होगा, बी वाई जो है वो आपका आ जाएगा माइनस के साथ 2 sin 60, यानी कि माइनस का आ जाएगा √3 ये वैल्यू आ जाएगी। अभी आप जब टोटल आर निकालोगे, ठीक है, तो वो आपका आ जाएगा एक्स कंपोनेंट ए एक्स प्लस बी एक्स आई प्लस ये सारे फॉर्मूला जो मैं लिख रही हूँ डायरेक्ट, ये सारे मैं पीछे बता के आई हूँ लास्ट वीडियोस में, तो आप देखना उसको। ये हो जाएगा आपका ए वाई प्लस बी वाई जे, ठीक है। ए एक्स बी एक्स क्या आया, 1 है तो 2y प्लस ए वाई बी वाई क्या आया, प्लस √3 माइनस √3 क्या आ गया, 0। तो टोटल रिजल्टेंट की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 2y। अब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या कर दोगे, √2 का स्क्वायर, और आंसर आ जाएगा आपके 4। ठीक है। अच्छा, ये जो 2 आया था उसको ऐसे भी देख लो, ये जो डायग्राम है सिर्फ इससे भी डायरेक्ट भी समझ सकते हो कि एक्स डायरेक्शन में तो दोनों के कंपोनेंट ऐड हो रहे थे, एक ही डायरेक्शन पे थे तो दोनों आप ऐड कर दोगे, लेकिन वाई डायरेक्शन पे अगर कंपोनेंट आप देखो दोनों के ए और बी के, तो दोनों जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर। ठीक, तो एंगल तो दोनों के बीच में 180 का है, लेकिन दोनों को एडिशन मैंने पीछे बताया था आपको एक वीडियो में कि दोनों जब उल्टी डायरेक्शन में हैं, तो जब डायरेक्शन उनकी ऑपोजिट जा रही है तो उनको जब आप ऐड करोगे तो आंसर आपका कितना आना है, 0। कैंसिल हो जाएंगे ना दोनों उल्टी डायरेक्शन में, तो बस खत्म हो गया, ये हो गया 0 आपका। आई बचा सिर्फ, यानी कि सिर्फ एक्स कंपोनेंट में आपको जो रिजल्टेंट मिल रहा है वो सिर्फ एक्स कंपोनेंट में मिल रहा है, वो हमें क्लियर हो रहा है इस डायग्राम से, क्योंकि सिर्फ आपका बच रहा है ए एक्स प्लस बी एक्स, सिर्फ एक्स कंपोनेंट बच रहा है क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में थे, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ गए। वाई कंपोनेंट दोनों ने एक दूसरे के अपोजिट मूव किया हुआ था तो दोनों हो गए कैंसिल आउट। सो रिजल्टेंट की वैल्यू सिर्फ आएगी एक्स डायरेक्शन में, और उसी से आप मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, ये हो गया। ठीक है, सो एक्चुअली ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, इसको आप ध्यान देना। और ऐसे ही जो है आप क्वेश्चन थोड़ा सा और भी NCERT और HC वर्मा की बुक वगैरह से ढूंढो, प्रैक्टिस करो वहाँ से। तो चलिए फिर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।